Before we proceed further, let us express our heartfelt gratitude to our principal sir, vice principal sir, and our dashing faculty members who have guided and mentored our seniors throughout their academic journey. Your wisdom, support, and encouragement have been invaluable. I request everyone to give them a huge round of applause. Now I would like to say a few words. कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है इन पर सारे जमाने की, कुछ पर दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। Now I would like to welcome the dignitaries on the dais. Let's start with our principal, Dr. D.A. Gavai. I request Mr. Tanish to welcome sir with a I request Tanish to welcome sir with a bouquet. Now I would request Ms. Rutuja to welcome Sonkar sir. Now I would request Ms. Meera to welcome our today's chief guest, Dr. Mukesh Gautam. Now I would request Ishita Now I would request Ms. Supriya to welcome Professor Anurag Iyer. Now I would request Ketan to welcome Professor Shrikant Oja. On behalf of first year students, I welcome other faculty members on the dais. I welcome you all, sir. Now, to begin, without wasting much time, we would like to invite our principal, sir, Dr. D.A. Gavai, who will be addressing our seniors and sharing some experience. Before that, I would like to briefly introduce our principal, sir. Sir has done his PhD from Jawaharlal Nehru University, Rajasthan. Sir has published many papers. He has been appointed in many various authorities and bodies of Mumbai University. He has published many books like Financial Accounting and Auditing for third year BCom Sem 5, Financial and Auditing for TY BCom Sem 6. So we are very honored to have such principal with among us. I request sir to please address our students. Good evening, friends. मैंने
सिर्फ 2 ही दिन हुआ है, 4 लिया है और आपका एग्जाम चल रहा था। सोनाल सर ने मुझे बोला है सर अभी ये लास्ट ईयर का एग्जाम है, इसके बाद में बच्चे एग्जाम के बाद में कॉलेज में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कल ही आपके क्लास में, शायद मैं 50% क्लास में गया हूँ, 50% क्लास में नहीं आया, तो मैंने बोला चलो सर ने बोला है फेलिसिटेशन करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, गेट टुगेदर हो जाएगा ताकि सबको मालूम हो जाएगा मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ। जब क्लास में गया 207 में गया, 206 में गया, 205 में गया, तो इसमें से मेरे पहचान वाले जिन्होंने मेरे साथ बहुत साल काम किया है, रवि प्लीज, इन्होंने मेरे साथ बहुत साल काम किया है। When I was a program NSS program officer, he is my senior leader. We did so many programs. I organized 10 residential camp. हम अलग अलग प्रोफेशन में चले जाएंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब जाएगा या फिर कोई वकीली करेगा या फिर और कोई अलग अलग सेक्शन में आप जाएंगे। मेरा कहना यही है, आप जहाँ पे भी जाइए, जहाँ पे भी जाइए वहाँ पे आप मन लगा के थोड़ा सा काम कर लीजिए ताकि हमारे कॉलेज आपके साथ साथ में हमारा कॉलेज का भी नाम हो। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी प्रोग्राम में जाता हूँ, प्राउडली बोलता हूँ आई एम स्टूडेंट ऑफ पीए सोसाइटी, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ पीए सोसाइटी। आई डिड बीकॉम MPhil in PA society. Then I joined to PA society. This is luckiest society to me. और सब जगह पे जाकर बोलता हूँ I am PA society student. और कहीं पे भी नहीं है सब। I work many committees from the university, central government, state government. जहाँ पे भी जाता हूँ पहले बोलता हूँ I am student of PA society. तो मेरे सोसाइटी का नाम, मेरे कॉलेज का नाम मेरे पहले आना चाहिए। यही काम करना है हमको। हमसे हो सके हमारे सोसाइटी का, हमारे सोसाइटी ऑल द सोसाइटी दैट इज इंडियन पीपल्स, दैट सोसाइटी, सबके लिए हम काम कभी ना कभी काम आएंगे। कुछ ना कुछ बात हमारे जिंदगी में से जो 50 साल है, 60 साल है, उसमें से एक दिन भी हमारे सोसाइटी के लिए दिया तो भी हमारे लिए काफी है। ये इतना बोलते मैं मेरे दोस्तों को समाप्त करता हूँ। My special thanks to Sonal sir and the organizer committee. Those who have given chance to speak, be one with you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind words. I would request Professor Anurag sir to say few words. तो आज का इन्फॉर्म भी करेंगे अपना फॉर्मल नहीं है, तो थोड़ा आज मेरे हिसाब से सच बात बता, अभी कहाँ तक के बता ना, सबको अपने प्रोफेसर के नाम मालूम नहीं किया। चलो देखते हैं आप बच्चे से जो फर्स्ट नंबर में बैठे उनका नाम क्या है, आपने जो सेकंड नंबर में बैठे कौन नंबर इनको तो पूछने देना। तो पहली बात तो ये है, चलो वेरी गुड, क्योंकि जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किसी को नहीं हुआ, आवाज में किसको क्या समझता है किसी को नहीं भी मालूम रहेगा, बराबर। तो स्टार्टिंग में किसी को नहीं मालूम हुआ, एटलीस्ट जाते जाते तो प्रोफेसर के नाम पता चल गए। अच्छा थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये जो 4 लाइन में मैं बता रहा हूँ पूरी जिंदगी का सार है आज के लिए। सुनिए, क्षण 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 बीतते जीवन बीतता जाए, क्षण 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 बीतते जीवन बीतता जाए, क्षण क्षण का उपयोग करे बीता क्षण नहीं आए। दोस्तों आज आपको मैं दोस्तों मैं देता हूँ कि जब बेटा बड़ा हो जाता है, आपकी चप्पल में उसके पेट में आ रहा है शूज, तो उसके लेवल का हो जाता है।
ये जो क्षण है, ये जो मोमेंट है, आज का मोमेंट, ये मोमेंट किसी किसी को जल्दी भी जाना है, किसी को लगता है कभी खत्म हुआ, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये मोमेंट सिर्फ एक ही बार आने वाला है आपकी लाइफ में, एक ही बार। ये 2 घंटे जो है आपके 2 घंटे फिर से कभी नहीं आएंगे। आप एलएलबी के स्टूडेंट का जो लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है वो ये 2 घंटा है, तो इसीलिए खुल के एंजॉय करिए। जो भी गाना बोलेंगे वो, और जिसको भी गाना बोलना होगा, जिसकी आवाज थोड़ी सुरीली है, ऐसा नहीं है कोई भी बोल सकता है, वो खुल के एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये लम्हा फिर से आने नहीं वाला है। और बच्चों में ये प्रोग्राम को अरेंज करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो डेविल माइंड है, डेविल माइंड नहीं बोल सकते, जो सूत्रधार है, सबको मालूम है कौन है, वो अपने सबके क्या है, सोनकर। The program will continue now. Now, I will do the right hand. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now, we have with us our chief guest. He is Dr. Mukesh Gautam, and he is a well-known poet, हास्य कवि, and a stand-up comedian. मुकेश गौतम जी देश विदेश के में हास्य कवि के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। जब वो स्टेज पर होते हैं तो महफिल में सिर्फ हंसी ठहाके ही सुनाई देते हैं। टीवी पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट्स, कॉमेडी चैंपियन, वाह भाई वाह, बहुत खूब, जस्ट लाफ, बाकी माफ, जॉनी आला रे, राजू हाजिर हो जैसे अनेक शो के द्वारा उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया है। So I welcome sir and I request everyone to just give them a huge round of applause. मैं चाहता हूँ कि सर हमारे दर्शकों को कुछ सुनाए। मुझे बता देना, मेरा शुरू कर दूंगा। मेरे खड़े होते ही आप लोगों ने जो खामोशी इख्तियार की, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। 3.5 लोगों ने ताली बजाई, इतनी में मेरे मोहल्ले में बजवा देता हूँ। आज आप एग्जाम के स्ट्रेस से फ्री हुए हैं, नहीं हुए? एक मिनट और आपका दरवाजा बंद कर दिया। आप एग्जाम दे के इंटरनल आए हैं, समोसे आपने 2 खा लिए हैं सबने? एक मिला? अच्छा, नहीं, उनका ये कहना है कि बाद में एक और मिलेगा जो अच्छी ताली हो जाएगा उसको। यकीन मानिए आप बेटा, अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो मैं मन मचल कर मोर होना चाहिए, हादसे का अब दौर होना चाहिए, मैं सुनाऊंगा बहुत कुछ आपको, पर तालियों में जोर होना चाहिए। आप अगर सच में इस शाम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ध्यान से सुनना होगा। ताली वाली इसलिए भी ठोकनी पड़ती है क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में, आप यहाँ तो आप लोग बैठे हुए सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग यही थोड़ा से बताओ, अम्बेडकर कॉलेज में जानता हूँ दशरथ जी के, सौंदर्य जी के कितने चक्कर लगाए पड़ते हैं, अच्छी तरह आपका। आप जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप वो लोग हैं जब इस देश में आम आदमी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब इस देश में आम आदमी हर तरफ से आहत होता है, जब इस देश में आम इंसान को ऐसा लगता है कि उसके लिए कहीं कोई मार्ग नहीं बचा, तो उसके लिए सिर्फ एक बार होता है, वो होता है विधि का, न्याय का। आने वाले दौर में आप उसके पहली है, आपकी जिम्मेदारी कितनी है आपको?
तालियां आपको इसलिए बजानी पड़ेगी, पिछले दिनों एक आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया। इन बेटा कुछ और बात करनी है क्या? मैं उस तरह की महफिल में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता हूं। अगर ऐसे ही करना है तो आप करते रहिए। एक प्रोग्राम में ऐसे में परफॉर्म कर रहा कोई डिस्टर्ब हो जाता है। एक प्रोग्राम में मैं ऐसे ही परफॉर्म कर रहा हूं, सब लोग ताली बजा रहे हैं। मुझे बुलाया है तो मुझे सुनो बेटा, बढ़िया लोग हैं आप। एक आदमी पिछले जो निर्मल बाबा के दरबार में गया, निर्मल बाबा मालूम है ना, हरी चटनी लाल चटनी समोसे वाले, उनके दरबार में गया। बोले बाबा कृपा नहीं हो रही है। वो बोले कभी सम्मेलन में जाते हो? बोले जाता हूं। मुकेश गौतम को सुना है? बोले सुना है। ताली बजाई थी? बोले नहीं। बोले बस कृपा वही रुकी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं आप लोग कृपा करती है तो ताली वाली ठोकते रहेगा। एक और आदमी पिछले जो निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा कृपा नहीं हो रही है। बाबा बोले कभी बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ की है? वो बोले नहीं, बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ तो नहीं की है। बोले बस कृपा वही अटकी हुई है। अगले दिन सुबह सुबह बीबी ने इनके सामने चाय पराठे रख दिए। इनको बाबा जी की बात याद आ गई। बोले बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ करनी है। ये शुरू हो गए। बोले वाह क्या पराठे है, क्या टेस्ट है, क्या लज्जत है। ऐसा मन करता कि हाथों ने पराठे बनाए, उन हाथों को चूर। घरवाली अंदर गई, 4 फुट का लोग उठा के लाई। वो 26 साल हो गए अपनी शादी को, 26 साल से अपने हाथ से बना के खिला रही हूँ। आज तक तो तारीफ नहीं की थी, आज प्रोडक्शन 4 पराठे क्या दे गई। हाथ छूने का मन करा। तो कभी कभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस मस्ती में रहना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में मस्ती है समझो उसकी ही हस्ती है। वरना आधे लोग तो ऐसे जिंदा है जैसे जिंदा जबरदस्ती। आदमी को जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है। आज का दिन हम खोए क्यों? वो दिन लम्हों में हंस सकते हैं, उन लम्हों में रोए क्यों? मुझे पता है साउंड बढ़िया नहीं है, और किसी भी कार्यक्रम को हिट करने में साउंड की बहुत जिम्मेदारी होती है। साउंड पता नहीं आप मेरी आवाज आप तक बराबर पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रहे। बस जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उतने सुनते रहिए। जीवन में हंसी बहुत जरूरी है। हंसी हमारे आसपास होती है। मैं इतनी फिर घर से निकला, सड़क पर खड़ा एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोले अंकल मेरे माँ बाप का झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। ताली वाली आपको बजानी पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आपकी परफॉर्मेंस की अच्छी परफॉर्मेंस में ताली नहीं बजाता उसको अगले दिन में घर जाके बजानी पड़ सकती है। अभी समझ में आ गई तो ठोक नहीं। मैं अभी समोसे बटने का कार्यक्रम अभी चलता है, खाते रहिए बिल्कुल। ये पहला प्रोग्राम है, खाते पीते सुनते चलता है भाई। आप लोग मैं बता रहा हंसी कहीं से भी आती है। मैं तो घर से निकला बता के सड़क पर, मैं ऐसे ही प्रोग्राम में परफॉर्म करना शुरू किया तो पूरे कटेगा रहना शुरू किया। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब उसके कटेगा रहना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। आइए ये उचित समय पर बताएं, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। बस आइए मैं थोड़ी देर आपके बीच हूँ। मैं आपकी मानसिकता को समझता हूँ कि वहां से 2 घंटे निकलने के बाद आप लोग उस मूड पे होंगे कैसे तो बस पकड़े, कैब लें, घर पहुंचे। मैं 2-4 मिनट आपके बीच हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टेंशन लोग मेरा मतलब देते हैं। मैं एक दोस्त घर में गया, अपनी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 20 दिन पहले मैं दादाजी मरे, मैंने 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊजी मरे, वो भी 50 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने तो क्या की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। लोग बिना मतलब टेंशन लेते। एक और दोस्त घर में गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूँ एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ मरेगा, इसमें टेंशन की क्या बात है? वो बोला टेंशन की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा तो शमशान लेकर पहुंच जाएगा।
नहीं लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए, लेकिन मजा लेने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं अपना अहम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो जोर जोर से चिल्लाए वो होकर नहीं होता, बिना मतलब पार्टी मारे वो जोकर नहीं होता, और मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। एक समोसा और दे दो इसको, एक समोसा और दे दो तो मेरे हिस्से का बात इसको रोटी जब से तो समोसे रखी हुई है। टेंशन नहीं लेने वाले लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। कुछ लोग पहले टेंशन नहीं लेते, कुछ लोग दूसरों को टेंशन देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का था, बहुत हंसा था। मैंने क्या हुआ तो बोला कुछ नहीं, अपने पड़ोसी ना मिश्रा जी की 200 करोड़ की नौकरी लग गई। अब मैंने कहा नौकरी मिश्रा जी की लग गई तो क्यों मजा ले रहा है? वो बोला कुछ नहीं, मिश्रा जी का टिकट खो गया। तो कुछ लोग दूसरे को दुखी देख कर मजा ले लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरे यहाँ हरदीप सिंह रहता है, हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके चोर भागा था। मैंने कहा हरदीप पर चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोला भाई साहब काय को टेंशन लेनी, चार्जर तो मेरे पास ही है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेता, बिल्कुल टेंशन नहीं। चल लोग कहाँ टेंशन लेते। मेरे एक दोस्त की नई शादी हुई, शादी के बाद एक दिन मेरे पास आया, बहुत टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबके अंदर भी टेंशन। मेरे बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तो मैंने मेकअप करवाना बंद करो। वो बोले भाई साहब फिर तो और समस्या है, बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोगों की एक समस्या नहीं। आप बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये ऐसा कॉलेज है जहाँ नामचीन लोग निकलते गए हैं, देश विदेश में अपना नाम कर रहे हैं। तो आजकल बड़ी खतरनाक स्थिति है। कई जगह तो ऐसे मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए हैं, जगह जगह, क्योंकि हाईवे पे जितने ढाबे नहीं उससे ज्यादा तो मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए। ऐसे एक मैनेजमेंट कॉलेज में एक लड़का एमबीए में लाइन में लगा हुआ था एडमिशन लेने के लिए। उसने वहां के वॉचमैन से पूछ लिया, बोले मैं यहाँ एमबीए में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कॉलेज बढ़िया तो है ना? वॉचमैन बोला कि कॉलेज बहुत बढ़िया, एमबीए मैंने भी यहीं से कर रखी। ये हालत हो गई है एजुकेशन की। ऐसे में आप बड़े अच्छे लोग हैं, आपको बहुत अच्छा अवसर मिला कि आप इतने अच्छे कॉलेज में जुड़े हुए हैं, जहाँ से इतने, मैं जानता हूँ आपके बीच में बैठे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। आप लोग किसी कारण से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अलग अलग आप क्षेत्रों में बड़ा नाम है आपका, उसके बाद भी आप अम्बेडकर कॉलेज से इसलिए जुड़े हैं कि यहाँ अध्ययन करने की, यहाँ पर आकर पढ़ने की आपको बहुत अच्छा अनुकूल माहौल मिलता है, इसलिए आप इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। और आपने इतनी बढ़िया कॉलेज में सोनकर सर के टाइम पे, मैं समझता सोनकर सर कितने लोकप्रिय है इस कॉलेज में। मुझे कोई भी दुविधा होती है मैं सोनकर सर से ही सलाह लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी लॉ के आदमी से सलाह लेनी चाहिए। मैंने पिछले दिन सोनकर साहब से सिर्फ इतना ही पूछा, मैंने कहा सर लोग मुझे मरने के बाद भी याद करें, मुझे क्या करना चाहिए? ये बोले कुछ नहीं, लोगों से उधार लेके मरो। तुम मर जाओगे, सामने वाला सोते जागते उठते बैठते रात में तुम्हें याद करेगा। इतने बढ़िया जवाब छोड़कर चले जा सकते, लेकिन आपकी तालियां वाली उतनी बढ़िया नहीं दिखनी बननी चाहिए। आज तो लोग इतने बढ़िया हॉल में बैठे हुए, हम लोग मेरे खेले के प्रोग्राम में मिल जाते हैं। पिछले लोग जबलपुर गए, जबलपुर जेल में प्रोग्राम था, जेल में प्रोग्राम अपने परफॉर्म करके हम लोग निकल रहे थे, गेट पर जेलर साहब मिल गए, इसे भी एक एक्स्ट्रा देना, गेट पर जेलर साहब मिल गए। मैंने कहा जेलर साहब आपकी जेल बहुत अच्छी है। जेलर बोला कभी भी आ जाओ, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कहाँ कहाँ प्रोग्राम होते हैं किस किस तरह से, और आप अच्छे लोग हैं जो मन से बुला लेते हैं, सुनते हैं। और मैं वैसे बड़ा कॉन्फिडेंस वाला हूँ, अगर आपने अभी भी बातचीत बंद नहीं की तो मेरा कॉन्फिडेंस जा, मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला हूँ, इतने कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि आज तक इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे थे, पिछले तो एक प्रोग्राम में एक ही आदमी बैठा हुआ, मैंने 2.5 घंटे सुना। अब आप सोचो और अगर मैं शुरू हो गया तो 2.5 घंटे मैंने लगातार सुनाए। 2.5 घंटे सुनाने के बाद एक आदमी बैठा हुआ था, उसके पास गया, मैंने उससे कहा सर मुझे लगता है आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं फैन मैन कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूँ। तो बंद जेलों में लेके चलूं, मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला हूँ, एक बार शुरू होता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। एक जगह तो ऐसे ही सुनाता रहा, पीछे से आगे होने लगा, एक बदल जाता
इसलिए तुम कितने भी समझ से खा लो, पूरी सुना दो जाता है। समोसे खिला खिला के सुनाऊंगा, और अगर तालियां नहीं बजाई तो 2.5 घंटे 5 घंटे में सुना सकता हूँ। एक कवि सम्मेलन में तो एक कवि ने इतनी लंबी लंबी और बहुत कविताएं सुनाई कि सामने बैठे श्रोता की डेथ हो गई, उसके ऊपर मुकदमा चला, जज ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाते जज ने कहा कि हे कवि, तेरी लंबी लंबी और बहुत कविताएं सुनने से एक श्रोता की डेथ हो गई, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा तो बता। कवि बोला, तो अच्छा वही वाली कविताएं आपको भी सुनानी चाहता हूँ। तो यकीन मानिए मेरी पूरी याद है, अगर आपने ढंग से ताली वाली नहीं बजाई तो मैं वो भी सुना सकता हूँ। आप बढ़िया लोग हैं और मैं इतना कॉन्फिडेंस वाला हूँ। आजकल थोड़ा सीनियर हो गया तो मेरा नंबर आज के प्रोग्रामों में बहुत लेट आता है। पिछले जो है कवि सम्मेलन में तो मेरा नंबर सुबह 4 बजे आया, सुबह 4 बजे आया, सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। मैंने कहा एक को भी सुना दूंगा। मैंने कहा भाई साहब आपका स्वागत है, तो बोले स्वागत की ऐसी तैसी, तेरे बाद मेरा नंबर है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस वाला हूं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ लड़कियां बैठी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाओं के मैं बिल्कुल आलोचना नहीं करता, क्योंकि महिलाएं ही जो शक्ति है, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। शादी के समय व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है, शादी के 2 साल बाद पत्नी का रोम रोमांटिक नजर आता है। शादी के समय महिला कहती है तेरी जिंदगी को दुल्हन बना दूंगी, शादी के बाद समझ में आता है तो मैं क्यों नहीं आती। इसलिए महिलाओं की आलोचना नहीं करता, महिलाओं की इसलिए आलोचना नहीं करता, पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, आजकल सास डरती है कि पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। समय कहाँ बदल गया। अच्छा, महिला जब बहू बनती तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती तो बहू अच्छी नहीं मिलती, जब ननद बनती तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती तो बाकी बचा पति को कसम से आज तक किसी को ढंग का मिला ही नहीं। फिर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जो लड़कियां बैठी हुई हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है। चौथा ये बात को समझो ना, मैं बड़ी केमिस्ट्री में मुझे कौन इतनी केमिस्ट्री कमाल। धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य हुई माँ जिसने जन्मी डाला है, और बेटा तो होता है दीपक एक फूल का, बेटी दोनों फूल में करे उजाला। मेरा कहने का मतलब ये कहीं भी हो, आपको तो जीवन में एंजॉय करते रहना चाहिए, बातों हो जाना चाहिए। और अच्छे मन से सुनने, महिलाओं की इसलिए भी आलोचना नहीं करता, महिलाओं की इसलिए आलोचना नहीं करता क्योंकि महिलाएं ही है जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बुला के रखती है, वरना बच्चों के बापू को आसाराम बापू बनने में टाइम नहीं लगता। बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना। बस मैं 2-4 मिनट में ऐसे बोलता रहूंगा, आप 15 मिनट के बाद बोलूंगा, मैं 2-4 मिनट और आपके बीच ऐसे करते करते मैं 2.5 घंटे में सुनाऊंगा। दरवाजे बंद है, कोई जाने वाला तो है नहीं, और बाकी अटेंडेंस भी है बाद में, प्रतिशत बाद में अटेंडेंस भी लेना, जो निकल गया उसके निकल में क्या करना है वो आप जानते हैं। आइए बस मैं सच में 2-3 मिनट आपके बीच में बहुत बढ़िया आप लोगों ने बुलाया। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस विधा में आपने तारीफ से रहेगा बंद नहीं करेगा। आप कितनी बजा लो, मैं उतनी जितनी मुझे सुनानी है, और जब तक सब मिलकर नहीं बजाएगा एक आदमी, जब तक तो बिल्कुल नहीं चुप करूंगा। लेकिन आप सबसे बढ़िया लोग हैं, बड़े मन सुन रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया का बोल है, फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूँ फेसबुक। 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पर गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस करता। ये सोशल मीडिया, इसलिए कहता हूं कि ये फेसबुक भी बड़ा कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आपका फैशन एक ट्रेंड है।
पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5,000 रुपए, फेसबुक पर पूरे 5,000 फिल्म है, फेसबुक अकाउंट फोटो लेने के चालू है, प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, सब कुछ भले लागू है, फेसबुक अकाउंट फोटो दिमाग को 8 जगह चलाते हैं, कोई अपने गांव की मौत की खबर नहीं दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया, 1 घंटे में 40 दोस्तों ने। आपके जीवन में ये अवसर बार बार आया, फेसबुक पर एक लड़की की दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने और दोनों की फोन खुल गई, दोनों पति पत्नी निकले, निकले शादी करने का दोनों का इतना बदलाव आया कि पहले अगर 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा फोन करता था, आजकल 2 लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है। पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में उपयोगी हो या ना हो, आप जीवन में उपयोगी हो ये बेहद जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में वेद पढ़े या ना पढ़े, आप किसी की वेदना पढ़नी सीख लो, जीवन में ये बेहद जरूरी है। बदलाव के नाम पर क्या बदलाव हुआ? बदलाव के नाम पर हमने शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले जो दिल्ली में जब औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया तो मेरे जैसे नेताओं को लाइन कहने का मौका मिला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चले या एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर चले, फर्क जब पड़ता है जब हम एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर चले। इसलिए कहता हूं कि जरूरी नहीं हर वक्त लोगों पर भगवान का नाम आए, अरे वो हमारी पूजा है जब इंसान के काम भगवान का नाम आए, वो हमारी पूजा है जब इंसान के काम आए। इत्र से परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके केदार से कुछ हुआ चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सही तरह से कुछ हुआ चाहिए। 1 मिनट की एक कविता आपके बीच पर अपना स्थान दूंगा, कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, और आदमी 1100 एकड़ के धार्मिक देर में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। इसलिए कहता हूं कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कहना यह चाहता हूं जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे आपको भूलना नहीं है, और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सब कुछ जीना सीख जाओगे। क्या बेटा यही सुनना चाहिए, हर फैसला होता नहीं, यहाँ पर ध्यान से सुनोगे नहीं, बात नहीं करना, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के। ये जितने लोग सुन रहे हैं युवा पीढ़ी यहाँ तक बात पहुंचेगी, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के नाशिकों को क्या पता रखते थे हम कैसे खत्म करने जाने का। इसलिए कहता हूं कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको भूलना नहीं है, और अपनी आलोचना नहीं करता है तो आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सब कुछ जीना सीख जाओगे। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों का प्रतीक बनाकर मैंने बात कहने की कोशिश की है, बात आप तक पहुंच जाएगी। सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा, आप तक बात पहुंच जाएगी। अब मुझसे सैनिटाइजर लगा लिया और एक समझ मेरे बच्ची हो, एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों का प्रतीक बनाकर मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है, बात आप तक पहुंच जाएगी। सिर्फ इतनी बात है कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। मैंने कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर होता है जब किसी की प्रशंसा हो, मैंने कल कर बहती हुई एक नदी से कहा
से जोर से लगाई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई और मुझसे नहीं विस्तारित, मुझसे नहीं गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया। मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं। आप जैसे सुनने वाले सुधी लोग हैं इसलिए हम हैं। आप जैसे सुनने वाले सुधी लोग नहीं होंगे तो हम भी घर में बैठ कर बैंक उठाएंगे। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, गहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है वो जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। और कृष्णा 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 प्लीज सेकंड एक 10 मिनिटं शेवटची द्या मला प्लीज फक्त शेवटची 10 मिनिटं द्या मला प्लीज सायलेन्स 10 मिनिटं त्याची 3 वर्षी दिवस मला 10 मिनिटं प्लीज सेकंड बसून घ्या प्लीज
एक 10 मिनिटं शेवटची. लग्नाच्या पुढच्या महिला विद्यार्थिनी आहे, तुला काय बोलायचं आहे? गाने का नाम है किसी नजर को मेरा इंतजार, और फिल्म का नाम है एतबार, और गाना गाने वाले हैं YouTube नहीं है. Thank you.
आपल्या सर्वांचे ऋणानुबंध असे जपले गेले आणि माहिती अशी खुलली की मी बघता बघता ती लोक कशी गेली वाटलीच नाही आणि माहिती आणि दाखला जेव्हा करेल म्हणजे आपल्यामध्ये अशी खुललेली मैत्री कायम अशी ती भरभराटीच जाऊ आणि म्हणून एक खोल जोड्या मैत्रीसाठी दुःख अडवायला दुःख मित्रवण्यामध्ये वाट चुकणार नाही जीवनभर तुझी वाट चुकणार नाही जीवनभर तुझी एक तू मित्र कर आरशा सारखा आणि सांगायचं असेल तर आपण खूप टोकाला गेलो तरी आपला सरता पाय मागे येतोय त्याच्यासाठी उपयोग आत्महत्याच करणार नाही कुणी आत्महत्याच करणार नाही कुणी मित्र असला जवळ जर मित्र असला जवळ जर मनासारखा विकवण्यामध्ये गारव्यासारखा दुःख अडवायला ओंबळ्यासारखा मित्रवण्यामध्ये गारव्यासारखा मित्रवण्यामध्ये गारव्यासारखा धन्यवाद एवढं फक्त भेटत जा काय चाललंय मनात तुझ्या भेटून फक्त बोलत जा एवढं फक्त भेटत जा काय चाललंय मनात तुझ्या भेटून फक्त बोलत जा मोकळं सोड स्वतःला जरा कधीतरी मोकळं होत जा मोकळं सोड स्वतःला जरा कधीतरी मोकळं होत जा हलकं वाटेल तुझं तुला मन काम करत जा जुन्या आठवणी गप्पा गोष्टी आमच्यात सुद्धा रमत जा बरं का जुन्या आठवणी गप्पा गोष्टी आमच्यात सुद्धा रमत जा आलेच कधी वाईट विचार बिनधास्त फोन करत जा काय आहे आयुष्य अजून निदान मनातले वाटत जा काय आहे आयुष्य अजून निदान मनातले वाटत जा पहा काय फरक पडतो आनंद तेवढा लुटत जा बरोबर सगळे मित्र भेटी भेटे पाहिजे का 50च्या रेंजची भेटली पन्नाशीला आलो आपण काय करा पन्नाशीला आलो आपण संपर्कात तेवढं राहायचा पन्नाशीला आलो आपण संपर्कात तेवढं राहायचा काय हवं काय नको कुणाला सांगायचा मित्र असतात कशासाठी मैत्रीत तेवढीच जपतचा मित्र असतात कशासाठी मैत्रीत तेवढीच जपतचा आम्ही फक्त मस्त जपतो तसाच मस्त जगतचा आणि शेवटचं पैसा नाही लागत त्याला मनातले मात्र सांगत जा पैसा नाही लागत त्याला मनातले मात्र सांगत जा आणि पार्टी नकोय मित्र तुझी एवढं फक्त भेटत जा आता माझं आपल्या बरोबर व्यक्त करणार आहे सामान्य व्यासपीठ
आद्य जगत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं स्मरण करतो आणि माझे प्रेरणास्थान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मरण करतो. माझे सर्व आपण गुरुवर्ग व्यासपीठावर उपस्थित आहात आणि सर्व माझे सर्व सहकारी. आज आपण या फेरवेलसाठी जमलो. मला माहितच होतं आज फेरवेल आहे आणि सरांनी मला सांगलं की घरी जायचं नाही, आज कार्यक्रम आहे आणि आपण तिकडे भेटणार आहोत. आणि मला धक्का वाटला सर. आणि आज माझ्या शाळेत मी पण शिक्षक आहे सर, माध्यमिक शिक्षक आहे आणि माझ्या शाळेमध्ये रेल्वे ज्यावेळेस असतो मुलांचा उत्साह असतो. आम्ही आपण सांगितलेला असतो सर्व मुलं त्यावेळी सेवत असतात आणि आम्ही त्या तयारीची आलो. पण आता आल्यानंतर मनाची खूप तयारी झाली. पण आज मला काहीतरी आपण आज हरवतो आपल्या काहीतरी निसर्ग असं वाटू लागलं. बघा आपण जेव्हा गावीला असतो तेव्हा आपल्याला कदाचित तेवढा असा कार्यक्रम आपल्याला अनुभवला असेल नसेल ते मला नाही माहीत, पण मी अनुभवला. पण आज मला हे माझं फेवरेट डे जो आहे ज्यातून मला असं जाणवतं की आज मी सुखी आहे. कारण या 3 वर्षामध्ये सर खूप गोष्टी मी शिकलो. मी पण शिक्षक आहे पण सर्व गोष्टींमध्ये आपण तज्ञ असतो. आणि आज त्यावेळेस पहिला लेक्चर होता आणि पहिला राहुल गायकवाडची त्यांच्यासोबत आमचा एक लेक्चर होता आणि परत मॅडम होत्या सर. मॅडम आम्हाला एक टॉपिक समजवत होत्या आणि नेहमीप्रमाणे चौकस होती आणि नवीन प्रश्न विचारण्याची माझी आणि त्यामुळे मॅडमने मला एका प्रश्नामध्ये ऐकवलं आणि ते भरपूर राहुल गायकवाड माझ्यासोबत वाद झाला होता त्यावेळेस. पण तो त्या दिवसापासून लक्षात ठेवा सर, शिक्षक शिकवतात कर्मणीने ते आपण सगळं विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केलं पाहिजे आणि आपण ते केलंय सर्वांनी नक्कीच. आणि ज्या कॉलेजने नाव खूप काय दिलं लक्षात ठेवा. मुंबईत कॉलेज असते लक्षात ठेवा. भरपूर कॉलेज मी पाहिले आणि मी पण एका शाळेमध्ये शिकवतोय. परंतु या कॉलेजने आपल्याला जे दिले ते मुंबईतलं कुठले कॉलेज देऊ शकत नाही. ते म्हणजे परंतु सर्वजण सांभाळून आणि तुम्ही पण निर्णय अभ्यास करता आणि सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने मी सांगतो असंच आम्ही पण अभ्यास करू या परीक्षेमध्ये आणि आपल्या कॉलेजचं नाव उज्ज्वल करू आणि आपला वारसा काय पुढे देऊ आणि एकत्र काम करू. आपल्या सर्व एक शेवटचं आणि बरोबर व्यक्त करणाऱ्या देशी मॅडम, देशी मॅडमला मी रिक्वेस्ट करतो की स्टेजवर यावं, आपल्या बरोबर व्यक्त करावं. नमस्कार नमस्कार कहाँ पे आप बोल रहे नहीं. माझं नाव जयश्री अनिल मोरे. आपण सगळे लॉचे स्टुडंट आहोत. 3rd इयरचं आपलं कम्प्लीट झालेलं आहे आणि आज आपल्याला सरांनी एवढं छान सरप्राईज दिलेलं आहे की म्हणजे सर सरप्राईज दिलं नसतं तर कदाचित 1-2 तासाचं भाषण तयार करून आले असते. पण आता सध्या डोक्यात फक्त ते DPC आणि कालचे 5 पेपर म्हणतात असे. पण ठीक आहे सर, तुम्ही जे सरप्राईज दिलं त्याने आम्ही सर्वजण मंत्रमुग्ध झालो. सरांकडून असं काही सरप्राईज आपल्याला जाताना मिळेल
केला त्याच्याबद्दल पण आम्ही थर्ड इयरचे सगळे स्टुडंट तुमचे मनापासून आभारी आहोत. विशेष कौतुक त्या मुलींचं ज्यांनी आमच्यासाठी व्हिडिओ बनवला विथ म्युझिक आणि छान सॉंग आम्हाला आवडलं. आणि फर्स्ट इयरच्या मुलांनी जे फेअरवेल आपल्याला दिलं त्याच्यावरून आम्हाला कळलं की आम्ही खरंच छान होतो रे. आम्ही खरंच छान होतो. फर्स्ट इयरच्या मुलांशी एवढं बॉन्डिंग बोललं म्हणजे खरंच हमें कुछ बात है. दुसरी गोष्ट सर फर्स्ट इयर पहिल्या दिवशी सगळ्यांचं किती वाजता ऍडमिशन झालं मला माहित नाही. माझं संध्याकाळी 7 वाजता ऍडमिशन झालं. सोनकर सरांनी मला जाता जाता सांगितलं मॅडम कुठे राहता. मला सर इथेच कळेला. अच्छा इथेच ना 4 वेळ येतं लेक्चरला बरोबर. आणि तेव्हाचा दिवस आहे आणि आत्ताचा दिवस आहे. मी नेहमी रेग्युलर स्टुडंट राहिले आणि त्याच्या मागे पूर्ण क्रेडिट सोनकर सरांचं. अजून एक गोष्ट सांगायची झाली आपण फर्स्ट इयरच्या पहिल्या सेमला जे आपल्याला सब्जेक्ट होते तेव्हाचे जे शिक्षक होते त्यांच्यापासून आत्ताच्या सेकंड 6 सेम पर्यंतच्या सगळ्या शिक्षकांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो. आम्हाला फार मनापासून सगळ्या शिक्षकांची इथं नावं नाही घेता येणार पण फार मनापासून त्यांनी आम्हाला शिकवलं. जसं की मानवराव सर तर इथे आहेत, शिंदे सर आहे, फलक मॅम आहेत आणि ज्यांचा आपल्याशी फर्स्ट सेम मध्ये जास्त संबंध आला नसला तरी फर्स्ट सेम पासून लास्ट सेम पर्यंत आपल्याबरोबर राहिले ते म्हणजे बेडेकर सर. पाचू सर तर फर्स्ट सेमला शिकवत पण होते पण फर्स्ट सेमच्या वायवापासूनची सरांची ओळख झाली. तर खरं सांगते फर्स्ट सेमचा तो वायवा होता. फर्स्ट सेमचा फर्स्ट सेमचा जो वायवा होता तो अंगावर काटा आणणारा होता. पाचू सर फर्स्ट सेमचा जो वायवा होता अंगावर काटा आणणारा होता. तर लास्ट सेम पर्यंत पाचू सर म्हणजे आपले कधी मित्र मैत्रीमध्ये जाऊन गेले तर कधीच कळलं नाही. सरांचा खरंच स्वभाव म्हणजे बोलत आपला जॅकफ्रूट जो आहे बाहेरून तोडत असतो पण जो 6व्या सेम पर्यंत त्यातले रसाळ घर आम्हाला मिळत गेले आणि सरांशी जे वेगळं बदली झालं त्यात बेस्ट गेले. सरांची मध्ये तब्येत खराब झाली होती तरी पण ते आपल्यासाठी येतात आणि सरांनी वेळोवेळी आपल्याला अमूल्यचं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्यांचे प्रत्येक अनुभव आपल्याला शिकवत आलेले आहेत. फक्त सब्जेक्ट मध्ये विषयामध्ये न शिकवता त्यांनी वेगळं ज्ञान आपल्याला शिकवलेलं आहे. त्यामुळे ओझा सरांचे पण आम्ही मनापासून आभारी आहोत. इथं उपस्थित नसलेल्या सगळ्या शिक्षकांचे आम्ही मनापासून आभारी आहोत. जैन सरांचे आभारी आहोत. जैन सरांचा यावेळेचा वारवा एकदमच कडक होता. त्याच्यानंतर आपले एव्हिडन्स आणि CRPC आपल्याकडून रट्टा मारून घेणारे आपले पगार सर इथे आहेत. आणि सरांनी आता जे एक सेशन सुरू केलेला आहे सर्टिफिकेट कोर्सचा ते पण आम्ही ऑनलाईन अटेंड करतो. एवढं छान घेतात सर. आज सकाळी ADR घेतलं सरांनी. एवढं छान रिवाईज केलं. आंबे सरांनी तर उत्तम शिकवलेलं होतं पण ज्यांना लेक्चर अटेंड करायला नाही मिळाले त्यांच्यासाठी पण फार चांगलं सेशन सुरू आहे. त्याच्याबद्दल पण आभारी आहे. तर एवढ्या सगळ्या शिक्षकांचे आपण मनापासून आभार मानायचे पण एवढ्या सगळ्या शिक्षकांना आपल्यासाठी उभं करणारं व्यक्तिमत्व आपण जेव्हा सांगू सर आम्हाला ह्या सब्जेक्टचं रिव्हिजन हवं आहे, सर आम्हाला ह्या सब्जेक्टचे डबल लेक्चर हवे, सर ह्या सब्जेक्टचे आम्हाला ऑनलाईन लेक्चर हवे आणि ही इच्छापूर्ती कुणी केली असेल आपली तर सोनकर सरांनी. त्यामुळे सोनकर सरांच्या आम्ही मनापासून आभारी आहोत. आणि सर
सगळ्यांजवळ, सगळ्यांशी छान एकमेकांचे ग्रुप झालेले आहेत, मैत्री झालेली आहे, जी इथून पुढे सगळ्यांची राहणार आहे. पण सगळ्याच सेंटर सोनकर सर असतील. सोनकर सरांनी सगळ्या शिक्षकांना बांधून ठेवलंय आणि तसंच सगळ्या स्टुडंटना देखील बांधून ठेवलंय. बरोबर आहे की नाही? कामाचींचं पण नाव केलं आहे मी. पण मी सांगते नाही, आता संपलंय, आता मला बोलावंच लागेल, मी बोलणार. आता दशरथ सरांचं तर येणारच ना, त्यांच्याशिवाय पण हलतच नाही आमचं. हा, दशरथ सरांना 300ची मुलांची नावं पाठवा. आणि म्हणजे आम्ही आमच्या लग्नानंतरचं माझ्या नवऱ्याचं नाव आहे, पण माझ्या वडिलांचं नाव काय माहिती आहे दशरथ सरांना माहिती. आणि म्हणजे एवढं सगळं लक्षात ठेवणं, बघ तुझे बाबा हे सर्टिफिकेट राहिले, तुझं हे राहिलं, ते दे, नको दे. आणि एखाद्या वेळेला काय राहिलं, आपली घोडचूक, ते स्वतः युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊन त्यांनी आपल्यासाठी धावपळ केलेली आहे. त्यामुळे दशरथ आणि सर एक आपल्या जो ऑफिसचा सगळे स्टाफ आहे, लायब्ररीचा स्टाफ आहे, त्यांनी पण वेळोवेळी आम्हाला हेल्प केलेली आहे, मदत केलेली आहे. त्यांच्यासाठी पण एकदा सगळ्यात आठवणी जाण्यासाठी गोष्ट कुठली असेल तर असाइनमेंट आले, असाइनमेंट सबमिशन, व्हायवा, इंटरनल, बापरे सर आम्हाला तुम्ही त्याच्यातून तापून सुद्धा खळखळीत एकदम करून टाकलं. त्याच्यावर मूड कोड घेतलं, त्याच्यामध्ये आम्ही फार ट्रेन झालो, त्याच्याबद्दल पण आम्ही तुमचे विशेष आभार मानतो मूड कोड घेतल्याबद्दल. आणि नॅशनल मूड कोडचा आम्हाला संधी दिली, आमच्यावर विश्वास ठेवला सरांनी. सरांची ही कधीपासूनची इच्छा होती, पण सरांना वाटलं ही बॅच ते करू शकते आणि आपण ते केलं. नॅशनल मूड कोड कॉम्पिटिशन इन आवर कॉलेज 16 पार्टिसिपंट होते आणि पुढच्या वेळेला सरांचं टार्गेट 32 आहे. बरोबर असेल? आणि नेक्स्ट टाइम सुद्धा जर काही असेल आम्हाला कधी पण तुम्ही बोलवा, आम्ही तुमच्यासाठी लाईफ टाइम अवेलेबल असू, कॉलेजसाठी लाईफ टाइम अवेलेबल असू. नॉन पेड आणि तर खरंच आता ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या, पण मला खरंच बघून आलेलं आहे की किती मिस करू गोष्टी सर. आमची एकच आमच्या बॅचचा प्रॉब्लेम हा झाला की आमचं 3 वर्षाचा कोर्स आमचा 2 वर्षात संपला. आज त्याचं आम्हाला खरंच वाईट वाटायला लागलंय. ऍक्च्युली सगळ्यांना आनंद होत होता, आज आम्हाला ते वाईट वाटायला लागलंय की अजून 6 महिने अरे पाहिजे होते रे. आता जी बॉन्डिंग झालंय ना खरंच, मग ह्या बॉन्डिंग मध्ये सर एक अजून ट्रिप काढली ना आमची तर चालेल. नाशिकची जे पेंडिंग आहे सर, वेळेवर सर सोनकर सर नाशिकची विजिट आपली पेंडिंग आहे आणि सगळे तयार पण आहे. आज सुप्रीम कोर्ट विजिटला आम्ही कधी पण तयार आहोत. आम्ही डबल जाऊ खरं, आम्ही जाऊन आलो आणि सुप्रीम कोर्टचा एक्सपिरियन्स पण छान होता. त्यावेळेचा एक अनुभव सांगायचं झालं तर फक्त 14 लोक तयार झाली, पण सरांनी आम्हाला घेऊन गेले, सगळं दाखवलं आणि आमच्या मनासाठी ट्रीप केली. त्याच्यासाठी पासी सर आणि बेडेकर सरांचे पण आभार मानतो, प्रिन्सिपल मॅडमचे पण आभार मानतो सर. आणि आम्हाला सरांचा आत्ता अनुभव, आम्ही आत्ता आलो, पण सर तुम्ही पण आम्हाला मिस कराल आजच्या दिवसावरून की आमची बॅच हे सगळं नव्हतं, बेस्ट बॅच इन कॉलेज. आणि आज आपल्याला पेरेंट्सचं जे सरप्राईज दिलं ते प्रिन्सिपल सरांच्यासाठी पण आम्ही मनापासून आभारी आहोत. आतापर्यंत जेवढ्या आठवणी आमच्या मनामध्ये दाटलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये भर आजच्या दिवसाने घातलेले आहे सर. हा दिवस आम्ही कधीही विसरणार नाही. आणि आज
जोश आहे ना